अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट का वीक नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ़ यू पीपल रिमेंबर वी हैव tried to generate a definition of subject of organizational behavior in our previous class. If you people remember, we separated the word organizational behavior into organization and behavior. We concluded that organization is a place, or you can say it's the combination of people who actually join together or combine in order to achieve some common goal. And behavior is basically the action or the reaction or the way one reacts towards others. So organizational behavior studies human behaviors, where humans interact and how they act and react towards others. We have gone through from the difference of attitude, behavior, and intentions, and then we have looked from the iceberg principle that how attitude and behavior are different. Basically, attitude is invisible part, while behavior is the visible part of attitude. Attitudes are of course like larger in size than when we compare it with behaviors. So behavior is merely a part that is visible to others. So continuing our debate and discussion, we may be able to define OB. That what is a definition of OB. So I'm creating slide over here. So definition of OB, if we borrow the definition from the book of Colquitt, so it's very simple. He has defined OB in very simple words. He says that OB is basically, I'm just copying the definition, or we can generate our own as well. So here's the definition. OB is a field of study devoted to understanding, explaining, and ultimately improving the attitude and behavior of individuals and groups in organization. Actually, the book talks about human behaviors at work. So those behaviors may be in form of individual reactions, or those could be in form of behavior group reactions. Like you people may see around you that a certain individual may react differently, but when they act and react with their fellows and their group members, their behaviors are different. आप लोग अपने आप को देखें when you people are individual, so you might be very introvert or you will be very composed personality. जब आप ग्रुप में होते हैं तो आपका एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं। आप ग्रुप के नॉर्म्स, ग्रुप के बिहेवियर, ग्रुप के जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक डील करते हैं। इंडिविजुअली होता है यू माइट बी वेरी नाटी, लेकिन जब आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने जाएंगे तो यू वुड बी वेरी डिसेंट एंड वेरी पोलाइट ओवर देयर। ठीक है, आप अपनी शरारत वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग शरारत एज अ नेगेटिव आस्पेक्ट, बट इट कुड बी पॉजिटिव आस्पेक्ट एज वेल। इवन जो आपकी पॉजिटिव शरारतें आप उसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई हम वर्क प्लेस पे ये देखते हैं कि ह्यूमंस जो हैं उनके एटीट्यूड और बिहेवियर्स क्या हैं इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। फिर उनको अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना एंड अल्टीमेटली उनको अपनी डिज़ायर के मुताबिक इम्प्रूव करना इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या, इसके स्कोप में क्या आता है? बेसिकली इसके लिए एक डायग्राम है जो कोलकेट की बुक में बना हुआ है, हम उसी को बारो करते हैं वहाँ से, और उस डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हमारे सब्जेक्ट को। सो जस्ट कॉपिंग दैट डायग्राम फ्रॉम द बुक ऑफ कोलकेट, I have to take a screenshot from there, to just wait for a while for that screenshot. Yeah, it's almost ready. So we would see it, this is scope of the subject of OB, but for that I have to clear this place. I am just only placing it over here. So I hope so it would be visible enough. Oh, it's not visible. There are issues with the quality of the picture. So let me borrow it from somewhere else. I believe so this one would be fine. This source would be better one. Yeah, this one would be better one. Okay.
Okay guys, just wait for a while. I'm going to have that picture. Yes, I have it. So things are not working well over here. Just wait for a while. I'm going to stop the video. Okay, gentlemen, I have copied that diagram. You can see from here. So basically, there's a diagram, we call it schematic diagram. You would have gone through in research. Like we start with the independent variables, that is on the leftmost side. We have three basic mechanisms: organizational mechanism. Then we have the group mechanism. You can see over here organizational mechanism, group mechanism, and individual characteristics. These three characteristics collectively influence individual mechanisms. So it means there are three mechanisms: organizational, group, and individual. But that individual mechanism is influenced by three independent variables. Those are organizational mechanism, group mechanism, and individual characteristics. And because of that mechanism, that individual mechanism, individual outcomes are determined. Now imagine that what organization desires, what a manager desires from an individual, a high performing individual and a very highly committed individual. परफॉर्मेंस से आप जानते हैं जिस इंसान की आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो, जिसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट ज़्यादा हो, जिसके जो है बिहेवियर पास्ट है वो हम कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कमिटमेंट है, इसी तरह कमिटमेंट होती है व्हेन वन इज़ कमिटेड टुवर्ड्स अ जॉब। ठीक है, लाइक एक इंसान जब ये फील करता है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहूँगा, मैं इसी जॉब में रहूँगा और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये वाली जो फीलिंग्स है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। सो हर मैनेजर की कोशिश होगी कि एम्प्लॉय परफॉर्म भी अच्छा करे और वो हमेशा रहने के लिए तैयार भी हो हमारे पास। ठीक है, तो अब ये कब मुमकिन है? जब हमारे इंडिविजुअल मैकेनिज्म पॉजिटिव होंगे तो। खुद सोचें, जब एक एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन उसकी हाई है, ठीक है, यानी वो सेटिस्फाइड है, यानी पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन है, तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी और वो कमिटेड भी ज़्यादा होगा। जब उसकी स्ट्रेस का लेवल कम होगा, ठीक है, देन ही वुड बी और शी वुड बी मोर सेटिस्फाइड, sorry, she would be more committed, she would be performing better. Similarly, when motivation level is high, so motivation level high hone se bhi an individual will be performing better and more, will be more committed. Similarly, when an individual feels that there is a situation of trust, that individual has a trust in leader, has a trust in organization, feels situation of justice, that justice prevails over there, and ethics are like practiced over there, and the environment is ethical. So an employee would be more committed and would be better performer. Similarly, when an individual has learning opportunities and feel that he is involved in decision making, situation of autonomy and power. So what happens then? The individual feel committed. He will always try to remain in that place where he is having actually learning opportunities and he can participate in decision making. Similarly, he will be perform more. So these things will basically influence individual level outcomes. सिमिलरली अब वी हैव सर्टेन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो बेसिकली इंडिविजुअल मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ सीखने वाली है, अगर आप नोटिस करें तो जो इंडिविजुअल मैकेनिज्म है इट इज़ वर्किंग एज मीडिएटिंग वेरिएबल। यू पीपल नो दैट मीडिएटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो बेसिकली दो वेरिएबल्स को ब्रिज करता है और उनके रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। सो एक्चुअली हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है या ग्रुप मैकेनिज्म्स हैं या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे कैसे इंडिविजुअल आउटकम बेहतर होती है? तो वो इसलिए बेहतर होती है कि उससे इंडिविजुअल मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं और उसके एक्टिवेट होने से इंडिविजुअल के आउटकम्स बेहतर हो जाती हैं। तो इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में पर्सनैलिटी एंड कल्चरल वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी, आपको एबिलिटीज़ नज़र आ रही होंगी, ये दो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसमें आपको ग्रुप मैकेनिज्म्स के अंदर लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर, लीडरशिप पावर एंड इन्फ्लुएंस, टीम करेक्टरिस्टिक्स एंड टीम कल्चरल वैल्यूज ये नज़र आ रही हैं। देन एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ सेपरेट चैप्टर फॉर एवरी आस्पेक्ट।
ठीक है, आपको जितने भी एस्पेक्ट्स नज़र आ रही हैं, तो देयर इज़ अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट। तो जो इस बुक की स्टार्ट है, इट्स वेरी गुड मॉडल, जिसके मदद से पूरी बुक को इसने समअप कर दिया है। तो इस पूरे मॉडल के अंदर आपके पूरे टेबल ऑफ कंटेंट्स भी गिवन है। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 2 जॉब परफॉर्मेंस का होगा, चैप्टर नंबर 3 जॉब ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का होगा, फिर हम इंडिविजुअल मैकेनिज्म की तरफ आएंगे, फिर हम जो है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आएंगे, फिर ग्रुप मैकेनिज्म की तरफ और ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म की तरफ आएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ऑथर्स हैव ट्राइड टू क्रिएट अ मॉडल, जिसकी मदद से हम पूरे ओबी के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो मूविंग फर्दर बच्चों, इसी को मॉडल को अगर हम बेस बनाएं तो ठीक है, हम अपनी डिबेट को कंटिन्यू करें, और डिबेट को कंटिन्यू करने के लिए हम थोड़ी सी जो है मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इसे इसको नाम दिया है आथर्स ने इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, तो इसके अंदर हम लोग जो वेरियस इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो वेरियस पोर्शंस हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, कि वो किस तरह काम करते हैं। मैंने आपको बेसिक्स इसकी बता दी हैं, कि बेसिक्स ये हैं कि इंडिविजुअल लेवल की आउटकम्स हैं वो प्रिडिक्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, खुद सोचें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों काम करती है, टू बी मार्केट लीडर, टू हैव कम्पिटिटिव एडवांटेज, टू सर्वाइव इन मार्केट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा वेल्थ लेना, स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना, ये बेसिक पर्पजेज है ना बिजनेस के लिए। वो तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और उसमें बेसिकली जो एम्प्लॉइज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज जो है वो इंतहाई अहम है। अच्छा, अब क्यों क्यों जो है वो एम्प्लॉइज अहम है, वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो आगे मूव करते हैं, एक स्लाइड हम इंसर्ट करते हैं, वाई ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एक फर्म के पास। ठीक है, फिजिकल हैं, जिस तरह आप लोग जानते हैं फिजिकल रिसोर्सेज में जिस तरह लैंड है, मशीनरी है, या हमारे पास बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल रिसोर्स है। फाइनेंशियल है, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है ना, मनी हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, ठीक है, एट्सेट्रा। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, इसको हम इंटरेस्टिंगली जो है इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि ऐसे इसका नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़। गॉट इट। अच्छा, नाउ ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इसकी मदद से हम सब जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली बच्चों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बराबर हों उसके बावजूद वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में है, सऊदीया को देख लें, दुबई को देख लें, बट दे आर नॉट द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज नॉट डेवलप्ड। ओके, अब क्यों ऐसे, हम किस तरह बिलीव कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए आपको जो है बुक के अंदर एक जो है वो आंसर दिया गया है, कंसेप्चुअल आर्ग्यूमेंट दिया गया है, building a conceptual argument. Okay, what is that argument? Basically that argument is based on resources based view, resource based view, RBV भी इसे कहते हैं। ओके, अब RBV क्या बिलीव करता है बच्चों। ठीक है, इसका बिलीफ ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं दोज ऑफर कंपेटिटिव एडवांटेज टू द फर्म्स। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफर कंपेटिटिव एडवांटेज फर्म। ठीक है, कैसे, अब वो कौन से रिसोर्सेज हैं, ऐसा क्या होना चाहिए रिसोर्सेज के अंदर जिसके वजह से उनमें कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल होता है। ठीक है, तो उसके लिए दे हैव जनरेटेड एन एडिशनल वन बोर्ड डायग्राम, फिगर 1.2 है। ठीक है, मैं इसको पूरी फिगर को ही कॉपी कर लेता हूँ 1.2 के नाम से ही, ताकि आप बुक के साथ साथ चलते रहें। सो फिगर 1.2 जो है उसको मैं नेक्स्ट पे पेस्ट करता हूँ। माय गॉड, इट इज अगेन नॉट विजिबल, सो लेट मी ट्राई इट अगेन, वेट फॉर अ व्हाइल।
Okay, Vajo, there was a problem. ठीक है, because of that I cannot paste that picture over here because वो picture की जो visibility है उसमें काफ़ी सारा issue है, quality में issue है. तो that is why I am leaving that. तो you can refer back to figure 1.2 for that. ठीक है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ सी फिगर 1.2. ओके, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज होता है जो हमें रिसोर्सेज देते हैं. अब रिसोर्सेज कब हमें कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं, उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स फिगर 1.2 में बताया गया है. नंबर वन, दोज आर रेयर. ठीक है, सॉरी ये रेट आ गया, ये रेयर है. एंड नंबर टू, इन इमिटेबल. ठीक है, इमिटेट करना क्या होता है, कॉपी करना. इन इमिटेबल का मतलब क्या है, जो कॉपी ना हो सके. अच्छा, लाइक इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो कॉपी नहीं हो सकती, हिस्ट्री, देन न्यूमरस स्मॉल डिसीजंस, small decisions, and third thing is socially complex resources. ओके, अब जिस तरह रेयर, अगर तो कोई रिसोर्स आपके पास ऐसा है जो रेयर है, जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है, तो दैट दैट विल गिव यू अ कंपेटिटिव एडवांटेज. ठीक है, आपके पास एक ऐसे रिसोर्स हो जाएगा जो किसी और के पास नहीं है. वो जो रेयर रिसोर्स है उससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज होगा. जिस तरह आप देखें, हमारा आपके पास कुछ ऐसा हो जो किसी और के पास नहीं है. जिस तरह मुसलमानों के बारे में कहते हैं हमारी फ़ौज क्यों अच्छी है, क्योंकि हमारी फ़ौज के पास जज्बा ईमानी है. वो जो शहादत का जज्बा है वो हर कंट्री, हर फ़ौज के पास नहीं है. तो उसकी वजह से क्या है, ईमान ज़्यादा है. ठीक है, स्ट्रेंथ ईमान की ज़्यादा है. स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वो बिलीव मोर. ठीक है, और वी आर विलिंग टू डाई. अब ये रेयर है. इनइमिटेबल, जो कॉपी ना हो सके, एक ऐसी चीज़ जो कॉपी नहीं हो सकती, उससे भी आपकी जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. अच्छा, अब कॉपी ना होना कैसे हो सकता है, जिस तरह हिस्ट्री है, सबकी आपको पता है अपनी एक हिस्ट्री होती है. हर फर्म जो है उसके अपने रिसोर्सेज हैं, तो उसकी अपनी रिसोर्सेज की हिस्ट्री है. ठीक है, अब वो जो हिस्ट्री है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लोली स्लोली वो डेवलप होती जाती है. वो हिस्ट्री जो है, इट कैन नॉट बी कॉपीड. ठीक है, वो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिस तरह सोनी है ना, पाकिस्तान के अंदर सोनी के टीवी, सोनी के एलसीडी एलईडी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, उसकी अपनी हिस्ट्री है. इट टुक दैट कंपनी 45 ईयर्स टू डेवलप अ ब्रांड. लोगों के जहन में जो प्लेस बना लिया उन्होंने, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. अब वो हिस्ट्री इतनी आसानी से कॉपी नहीं हो सकती. ठीक है, इसी तरह न्यूमरस स्मॉल डिसीजंस हैं. अब जैसे इस बुक में उन्होंने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने स्टोर्स बनाए हैं उसने 2009 में, और 2002 के अंदर, 2001 के अंदर एप्पल ने अपने स्टोर बनाए थे. ठीक है, अब वो जो 8 ईयर्स का गैप है ना, एक तो एप्पल की अपनी हिस्ट्री है. ठीक है, एप्पल की अपनी सोच है, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे उन्होंने जो है वो अपने स्टोर्स बनाए थे. ठीक है, वो उसकी हिस्ट्री है जो कॉपी नहीं हो सकती. बेशक माइक्रोसॉफ्ट उसकी तरह के स्टोर्स बना ले, बट इट कैन नॉट बी कॉपीड. नंबर टू, न्यूमरस स्मॉल डिसीजंस. अब जैसे देखें, जब वो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्टोर्स लॉन्च किए 2009 के अंदर, तो दे कॉपीड द स्टाइल ऑफ एप्पल. तो सब लोगों ने कहा जी इन्होंने तो एप्पल की कॉपी कर लिया स्टोर्स की, और बड़े करीब करीब स्टोर्स बनाए माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के. तो अब लेकिन अब देखिए, वो स्टोर की अपीयरेंस तो उस जैसी बना सकते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे क्या डिसीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या सिस्टम चल रहा है जिस वजह से उन्होंने चीज़ों को इस तरह प्लेस किया हुआ है, नो वन नोज दैट. अब ये क्या है, ये न्यूमरस स्मॉल डिसीजंस हैं. तो समटाइम जो हमारे स्मार्ट डिसीजंस होते हैं वो भी कॉपी नहीं हो सकते. हमें अक्सर औकात जो है ना, वो कहते हैं कि लोगों को स्ट्रेटजी नज़र आती है, लोगों को टैक्टिक्स नज़र नहीं आते. ठीक है ना, तो आप जो है, या आप यूँ कह लें कि इसको लोग अपोजिट भी कहते हैं कि लोगों को टैक्टिक्स नज़र आती हैं, लोगों को स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये अपोजिट दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं. तो अगर हम कहें कि टैक्टिक्स लोगों को नज़र आती हैं और स्ट्रेटजीज नज़र नहीं आती, तो वही वाली बात है ना कि कुछ चीज़ें जो बैक एंड पे हैं, वो नज़र नहीं आएंगी. एक्चुअली वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देती हैं कि हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स इवॉल्व, हाउ थिंग्स वर्क ऑन, हाउ थिंग्स मूव ऑन. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये स्मॉल डिसीजंस हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने तो बना लिया, कॉपी तो कर लिया, लेकिन इधर दे आर 100% एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एप्पल, क्योंकि एप्पल ने तो बैक एंड पे बहुत सारी रीजंस और लॉजिक्स और जस्टिफिकेशंस की बेस पे अपने स्टोर्स बनाए होंगे ना. ठीक है, इस तरह सोशली कम्प्लेक्स रिसोर्सेज है हमारे पास. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सोशली बड़े कम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, जिनको इमिटेट करना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, लाइक आप देखें ना, सोशल फिनोमिना है, एक कल्चर होता है जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो कल्चर क्या फौरन बन जाता है? कल्चर बनते हुए तो बड़ा टाइम लगता है. ठीक है, कस्टमर के साथ रिलेशन है, कस्टमर के साथ रिलेशन क्या फोर्टनाइटली या एक नाइट में बन जाएगा, कि 15 दिनों के अंदर आपका हो, या एक रात में को बन जाएगा कस्टमर के साथ रिलेशन? इट्स नॉट पॉसिबल. तो बेसिकली जो है ये टाइम लगता है.
इस तरह टीम कल्चर है, बनते हुए बड़ा टाइम लगता है। आप जैसे देखिए इंडिया की क्रिकेट टीम है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। तो इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करें तो उनका एक नया प्लेयर भी आता है ना, तो वो टीम में आते साथ परफॉर्म करता है और वो हमारे बाबर आजम से अच्छा प्लेयर साबित होता है। ठीक है, आते साथ उनका कीपर आया, धोनी को उसने रिप्लेस किया, तो उसने साबित किया कि ही इज इक्वलेंट टू धोनी। उसने एक हारा हुआ टेस्ट मैच उन्हें जिता दिया है। अब ये चीज क्या है, ये सोशली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं कि उनका जो सोशल सेटअप है टीम का वो इस तरह का है, इतना खूबसूरत है कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। ठीक है, हमारे प्लेयर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते। अब ये क्या है, ये सोशली कम्प्लेक्स रिसोर्सेज हैं। हम जितना मर्जी कॉपी कर लें, हमारे हम बैट्समैन को एक को जो है वो कोहली की तरह की प्रैक्टिस करवा दें, एक को शर्मा की तरह की करवा दें, एक को जो है वो हम अजिंक्य रहाणे की तरह करवा दें, लेकिन वो जैसे नहीं मान सकते, क्योंकि उनके बैक एंड पे जो है वो जो रिसोर्सेज है ना, ठीक है, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, एक तो न्यूमरस स्मॉल डिसीजंस उसमें शामिल हैं, उसमें हिस्ट्री शामिल है, उसके अंदर जो है वो सोशली कम्प्लेक्स रिसोर्सेज शामिल हैं। तो जब तक ये तीनों नहीं होंगे वी कैन नॉट कॉपी देम। तो ये अगर तीनों कम्प्लेक्स हमारे हों तो वी हैव दैट एडवांटेज, वो कभी कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर उसमें ये चीज़ें ये खूबियाँ शामिल हों, तो ये चीज़ें अगर उसमें हैं तो नो वन कैन कॉपी इट, नो वन कैन इजीली इमिटेट इट। ठीक है, और उससे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, और इंटरेस्टिंगली जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हैं मैनेजर्स। ठीक है, ओ बी नॉलेज कैसे वो यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, आपने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपने मैनेजमेंट के रोल्स पढ़े हुए हैं और आप लोगों ने मैनेजमेंट की स्किल्स पढ़े हुए हैं। इंटरेस्टिंगली इन सब के अंदर ह्यूमंस का जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। लाइक फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, second next one is leading, and ultimately we have controlling. Similarly, we have skills. Skills are of three forms: interpersonal skills, interpersonal roles, informational roles, and decisional roles. And you people know the skills. There are three skills: technical, conceptual skills, and human skills. तो यू कैन आइडेंटिफाई ओवर हियर, लाइक प्लानिंग आप लोगों को पता है क्या होती है, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज आर डिवाइज्ड। देन ऑर्गेनाइजिंग में पुलिंग अप ऑफ रिसोर्सेज, पुलिंग अप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम क्या देते हैं। एंड लीडिंग में होता है मोटिवेटिंग अदर्स, एंड कंट्रोलिंग में है evaluating others performance. Okay, if you have a look, इनमें आपको नजर आ रहा है कि लीडिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस जिसके अंदर आपको ह्यूमन स्किल्स की जरूरत है, आपने लोगों को मोटिवेट करना है। इसी तरह आपको याद हो रोल्स में इंटरपर्सनल रोल्स हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं, डिसीजनल रोल हैं। इनमें जो इंटरपर्सनल रोल्स हैं ये रिलेटेड टू दूसरे लोगों से है ना, इंटरपर्सनल दूसरे लोगों के साथ आपने जो है वो किस तरह डील करना है। इसमें तीन तरह के होते हैं, आप लोगों को याद हो, फिगर हेड है, लीडर है, एंड लाइजन है। ओके, दीज आर द थ्री रोल्स। ठीक है, फिगर हेड क्या होता है, जो बेसिकली एक खानदान का सबसे बड़ा होता है ना, जो जिसके नाम पे खानदान पहचाना जाता है उसे हम फिगर हेड कहते हैं। अक्सर औकात हमारे गांव में, हमारे कस्बों में नाम लिया जाता है, ये जो है ना चौधरी हयात वाले हैं, या चौधरी हयात की फैमिली है। ठीक है, चौधरी हयात दादा अबू का नाम होता है, ठीक है, और उनके नाम का चल रहा होता है। ठीक है, ये फलां जो है ये मियाँ बरादरान है। ठीक है, फलां वाला मियाँ, बड़ा जो मियाँ था उसके नाम का। ठीक है ना, तो ये फिगर हेड है। लीडर होता है जो एक ग्रुप को लीड कर रहा होता है, अगेन ह्यूमन बीइंग है। लाइजन होता है दूसरे लोगों के साथ राब्ते बनाना, लाइजन बनाना, ये लाइजन ये भी ह्यूमंस के साथ है। इस तरह स्किल्स तो क्लियरली मेंशन है कि वन स्किल इज बेसिकली ह्यूमन स्किल। तो अब मैनेजर जो मर्जी काम परफॉर्म कर रहा हो, अब मैनेजर शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर वो ये सारे नॉलेज रखता है देन अ मैनेजर इज इफेक्टिव। मैनेजर जो है वो अच्छी तरह से काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ सब्जेक्ट ऑफ ओबी इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स। ठीक है, सो यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, हम लोग जो हैं वो इसको यहाँ पे हमारे बेसिक डिबेट पे हम पहुंच चुके हैं कि ओबी जो है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है फर्म्स के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है,
तो इसके मुताबिक जो बुक है, बुक के मुताबिक इसने एक रूल यूज़ किया है ओबी के बारे में, कि हमने बात तो बड़ी अच्छी की है कि ओबी जो है इसको मानते हैं हम लोग, लेकिन एक और चीज़ इसमें यहाँ इसने बताई है, व्हाट्स सो हार्ड, कि मुश्किल क्या है, ठीक है ना, कि मुश्किल क्या है। इसने एक यूज़ किया है 1/8 रूल। ठीक है, 1/8 रूल से क्या मुराद है, इसने कहा है कि 1/2 जो है ना वो, यानी सॉरी 1/2 जो है, डोंट बिलीव इन वैल्यू ऑफ ओबी नॉलेज। ठीक है, ये तो उसने कहा बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। 1/2 of those who do see the connection will do what many others have done, try to make a single change and इसी तरह अगर हम बात करें जो रिमेनिंग इसमें से हैं जो बिलीव करते हैं, इसमें से जो हाफ है, ठीक है ना, 1/2 of 1/2 डोंट यूज इट, ठीक है, और जो 1/2 of the 1/2 of the 1/2 यूज इट। ठीक है, सो तो अगर आप इसको करें 1/2 को 1/2 को 1/2 को, तो ये को 12% बनते हैं। ठीक है, सो सॉरी 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 सॉरी, तो 12% जो पीपल हैं, ठीक है, बिलीव इन वैल्यू ऑफ ओबी। ठीक है, तो दिस इज द डायलेमा जो वो कह रहा है ना, कि बेसिकली इस बात का यकीन बड़ा कम है कि बेसिकली इस तरह होता है, लेकिन रियलिटीज़ ये हैं कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह उसने एग्जांपल्स दी हैं, यहाँ पे आप लोगों ने इस एग्जांपल को पढ़ना है, ठीक है, केस फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ मैं दो केसेस लिख रहा हूँ, एक आइकिया का केस है बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में, ठीक है। देन उसने यहाँ पे दो कार व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज का नाम लिया जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की, ठीक है। तो उनमें से जो है हुंडई, हुंडई केस यहाँ डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दीज टू केसेस, मिनी केसेस हैं बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दीज केसेस इन लेटर पोर्शन ऑफ द क्लासेस जो है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर रियलिटीज़ हैं ओबी से रिलेटेड। तो ओबी को अगर हम डिफाइन करें, तो ओबी जो है ह्यूमन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, उसको जो है वो यूज़ करना फॉर बेटर ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स जो है उनके लिए। तो दिस इज़ बेसिकली ओबी। ओके, अब जो ओबी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, या ओबी को किस तरह यूज़ किया जाता है, तो ओबी बेसिकली इज़ अ सिचुएशन, या आप यूँ कह लें कि ओबी के अंदर क्या कुछ है। देयर आर 4 वेज ऑफ बेसिकली यूजिंग ओबी। किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। नंबर 1 मेथड ऑफ एक्सपीरियंस है, देन आफ्टर दैट वी हैव मेथड ऑफ इंट्यूशन, method of authority, and ultimately we have method of science। ओके, मेथड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, एज द नेम सिग्निफाइज, ठीक है, वन attempts gets experience and believes, ठीक है। पर्सनल एग्जांपल से, मेथड ऑफ इंट्यूशन, वन फील्स दैट इट सीम्स लॉजिकल टू बिलीव समथिंग, ठीक है, किसी को लगता है नहीं यार ये लॉजिकल बात है, बात मानने वाली है, दिमाग मानता है इस चीज़ को, दलील को मानता है, ठीक है। तो दलाइल से जब आप बात करते हैं तो ये आपके इंट्यूशन है। मेथड ऑफ अथॉरिटी, लाइक वंस बिलीफ ऑन हु सेड सो, ठीक है, जिसने कहा है ना उस पर यकीन होना। हमने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे पूरा यकीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत तब आएगी, हमें यकीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दज्जाल में ये होगा, हमें यकीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान और मोमिन में ये फ़र्क है, हमें यकीन है, ठीक है। हम बिला हीलो हुज्जत उसको मान लेते हैं। दिस इज़ अथॉरिटी, मेथड ऑफ अथॉरिटी। आप किसी आलिम को मानते हैं, किसी बुजुर्ग को, किसी पीर को मानते हैं, ये मेथड ऑफ अथॉरिटी है आपकी, ठीक है। अब देखिए ये बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें। वो आपने सुना होगा कुछ अर्से पहले सरगोधा में एक पीर था, वो डंडे मार के उसने 7-8 लोगों को मार दिया गया, उनके गुनाह बख्श रहे हैं। लोग बिलीव करते थे तो लोग कर रहे थे ना, ठीक है ना। वो एक हिंदुओं का गुजरा है बच्चों, कोई
प्रीचर था उनका, ही आस्ट 400 इंडिविजुअल्स, ये काफ़ी पुरानी बात है, कि जहर पी लो, तो सब लोगों ने जहर पी ली थी। दिस इज़ द फॉलोअरशिप, ठीक है जी, दिस इज मेथड ऑफ अथॉरिटी, वी कैनॉट से राइट और रॉन्ग। हम सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं कि मेथड ऑफ अथॉरिटी की, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ है ये इन्फ्लुएंस करती है। मेथड ऑफ साइंस है, ठीक है, इसमें हम प्रूविंग समथिंग विद एक्सपेरिमेंट्स और डेटा, हम डेटा से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज येट अनदर वे। अब ओबी के अंदर जो है, ठीक है, हम बेसिकली इन सारी फील्ड्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ओबी के बारे में कैसे जानते हैं, दीज आर द ऑल फोर वेज जिनके थ्रू हम ओबी के बारे में जानते हैं कि ओबी कैसे काम करती है और ओबी कैसा सब्जेक्ट है, ओबी के अंदर क्या कुछ शामिल है, ठीक है। तो इसमें जो साइंटिफिक मेथड है दैट इज वैल्यूड द मोस्ट बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम जो है ज़रा साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ चलेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, और हमारा फोकस उसी पे होगा कि ओबी में बेसिकली क्या है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने ये दो केसेस को अंडरस्टैंड करना है फॉर कमिंग वीक। इनको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसकी बेस पे फिर हम अपनी एक जो है वो समरीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ द बुक ऑफ कोलकिट एल्पाइन एंड कोलकिट एंड एल्पाइन की बुक जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लाइक बुक चैप्टर्स, सो यू पीपल कैन गो थ्रू फ्रॉम दैट एंड बिल्ड एन इमेज कि ये सब्जेक्ट क्या है हमारा। सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन in coming class with chapter number 2, that is job performance, ठीक है। got it, stay blessed बच्चों, may Allah keep you safe and healthy, and keep on praying for others as well.